मगर अल्टीमेटली पब्लिक को इसके बारे में सेंसिटाइज होना बहुत ही आवश्यक है। जो कैश फॉर वोट जो बोलते हैं तो सभी ट्राइब्स में नहीं होता है ये। सभी ट्राइब्स में जैसे हमारा मोनपा एरिया एक नहीं बल्कि 2 मेडिकल कॉलेज हम और बनाएंगे, एक नामसाई में बनाएंगे और एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। इस तरह का डेवलपमेंट पूरे अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में लगभग पिछले 10 सालों में हम लोग ने हाँ, वो मेरा काम करने के ऊपर में मेरा काम अच्छा लगेगा तो मुझे बार बार मौका मिलेगा। अगर मेरा काम ठीक नहीं हो तो मुझे ओए आप लोग आओ ना, आओ मामा। मैडम मैडम थेतन आओ ना। ओए मूवी सब आई ना आप लोग। आगे रख हाँ आगे Thanku Park Etiran, inaugurated by Prema Thanku, Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, on 2nd day of November 2025, in the August presence of Sri Mama Nasil, Honorable Minister, Home and Interstate Border Affairs, PHA and Water Supply, Department of Public Affairs, Srimati Dasanglapun, Honorable Minister, Women and Child Development, Cultural Affairs, and Science and Technology, all the MLAs and distinguished visitors. आएगा तो फिर जी सर। एक साल चिल्ड्रन
एक सेकंड एक भाई यहाँ पे तो मैं वो कर लेगा आज ये हफ्ता में कर लेगा पुराना MLA, Shri Namge Singh, Honorable MLA, Shri Sadan Chobeji, Honorable MLA, Shri Tenzin Yiwa Glo, Honorable MLA, Shri Nyamar Karba, Chairman Sir, Shri Roland Dagam, Chairman Sir, Shri Gunjum Haider, former SIC, Shri Tunge Ifa, former Chairman, Shri Akriti Sagar, Deputy Commissioner. And lastly, Shri Choge Rundup, ADC Dirang, Shri Purba Singh, Honorable MLA Dirang, come and visit to Honorable PWD and North West Zone. And project cost is 1,625 lakhs. Source of funding CIRF, and executive agencies are PWD Dirang, contractor MS Tenzin Construction. Thank you. आप थोड़ा बैठ जाओ, सब तो पकड़ो। 1, 2, 3 Ready, sir? Once more. Mimi ji का फोटो ही सब. Thank you, sir. Thank you. 그만 너무 평범하게 어다시오. 어이, 앞으로 오나, 엄마. मैडम ठेते ना ना ओए मूवी सब आई ना ब्रो मेरे को दो आगे वाला जो हाँ आगे में Kanpu Park Etiran, inaugurated by Pema Khandu, Honorable Chief Minister, Arunachal Pradesh, on 2nd day of November 2025, in the August presence of Sri Mama Nasim, Honorable Minister,
Home and Interstate Border Affairs, PHE and Water Supply, Department of Public Affairs, Srimati Datanglapun, Honorable Minister, Women and Child Development, Cultural Affairs, and Science and Technology, all the MLAs and distinguished citizens.
190 beds, source of funding and gold engineering water school. Construction of transit center and home augmentation of water supply and Mobile township for 2.37 million. From now to unlock of phase 1 and best farming. Project cost 6,167.47 lakhs. Source of funding NESIDS. We are here at Dirang of West Kamen district of Arunachal Pradesh, and today Chief Minister Pema Khandu along with other ministers, Home Minister and Women and Child Development Minister Dasanglu Pul, they came here at Dirang. Now the Chief Minister will inaugurate this park in Dirang Assembly constituency, and earlier one school also, Government Higher Secondary School, was inaugurated, and a bridge got inaugurated by Chief Minister Pema Khandu, and mini secretariat was also inaugurated by the Chief Minister. बाद में हमें दिरांग यहाँ पब्लिक को संबोधित करने के लिए हमें टाइम नहीं मिला था, तो इस बार मैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का टूर में हूँ। कल वहाँ बालापुंग कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर में था, और जितने भी जो सरकार की ओर से डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लिया उसका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन ले किया गया। और आज यहाँ दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी में है सुबह से, तो सुबह से लेकर अभी तक कई सारा कार्यक्रम जो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सरकार की ओर से यहाँ की जनता को डेडिकेट किया है, और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स फिर यहाँ पे फाउंडेशन का भी यहाँ पे लेइंग हुआ है। सो इस तरह का डेवलपमेंट पूरे अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में लगभग पिछले 10 सालों में हम लोग ने एक अचीवमेंट के तौर पे लेके आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे। मैं सभी पब्लिक को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, क्योंकि पब्लिक का आशीर्वाद के बिना ये सब कुछ संभव नहीं होता है। पब्लिक ने इस सरकार को बार बार मौका दिया है, इसलिए ये सब चीज़ जो है पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले मैं पब्लिक को ही धन्यवाद दे के इसके बाद जो भी सरकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो सरकार की ओर से पब्लिक को हम डेडिकेट करते हैं। सर, लेट जम्बे ताशी को भी आपने ट्रिब्यूट दिया, यहाँ एक मेमोरियल पार्क बना, इसके बारे में सर? ये अपना यहाँ के स्थानीय विधायक और लेट स्वर्गीय जम्बे ताशी जी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो बुद्धिस्ट का नियम में जो जांगचुप छोटिन होता है, छोटिन जो स्तूपा, वो जो पीस एंड कंपैशन के लिए होता है। तो चुग एरिया में लेट जम्बे ताशी का काफ़ी सारा रिलेटिव भी है, तो वो लोग ने लैंड डोनेट करके यहाँ के स्थानीय विधायक फुरबा जी ने उनके डेडिकेशन में एक जम्बे ताशी ये पीस पार्क एक यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका उद्घाटन आज हुआ है, क्योंकि आज के दिन में जम्बे ताशी का 3rd डेथ एनिवर्सरी है। सर, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन शायद आपने जिक्र किया कि वेस्ट कामेंग में भी एक मेडिकल कॉलेज का एक जिक्र किया, सर उसका बारे में हम जानना चाहेंगे सर। अरुणाचल प्रदेश में अभी फ़िलहाल एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है, और ये एक मेडिकल कॉलेज भी हम लोग ने 2017 में इसको परमिशन लेके हम लोग ने 17-18 को हम लोग ने स्टार्ट किया है। अभी वहाँ से फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्टर्स, सेकंड बैच ऑफ डॉक्टर्स भी आना शुरू हुआ है, और इस बार तो हम लोग ने सीट्स भी बढ़ा दिया है। मैंने अरुणाचल की जनता को कहा कि अभी आने वाला दिनों में एक नहीं बल्कि 2 मेडिकल कॉलेज हम और बनाएंगे, एक नामसाई में बनाएंगे और एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। अभी नामसाई वाला एक एडवांस स्टेज में है, उसका नामसाई वाला का पहले फाइनलाइज होने के बाद तो मैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का शुरुआत करूंगा। अभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट का सारा फंडिंग पैटर्न सारा चीज़ फाइनल हो चुका है, हम लोग PPP मोड में अभी जा रहे हैं। उसी मॉडल में हम लोग यहाँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। सर, दिरांग को हमेशा एक ट्रांजिट पॉइंट की तरीके से ये तवांग कॉरिडोर में माना जाता है, काफ़ी डेवलपमेंट पीछे रहा दिरांग। अब जैसे यहाँ चुग वैली है, हमने देखा 100 ईयर्स का एक म्यूजियम बनाया गया, आप लोग सपोर्ट करेंगे? और दिरांग को किस प्रकार सर ये जो एक 100 ईयर्स ओल्ड घर को
म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, पूरी दुनिया में ये नाम। ये जो चुग वैली में जो अभी टूरिज़्म का जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो वहाँ के चुग वैली में जो वहाँ के समाज है, जो वहाँ के जनता है और लेडीज़ लोग खास करके, ये उन लोगों का काफ़ी मोटिवेटेड लोग हैं। वो लोग ने अपने आप में एक मोटिवेशन लेके एक एजेंसी को वो लोग ने हायर किया। यहाँ चुग वैली में एक तो फेस्टिवल भी वो लोग अपना विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग वो लोग ने शुरुआत करके चुग वैली को पॉपुलराइज़ किया हुआ है। सो इस प्रकार से हर एक चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट होने से ये सक्सेस भी नहीं होता है। हम लोगों का सोसाइटी का ओर से इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का ओर से कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको रोड चाहिए, पानी चाहिए या बिजली चाहिए, वो चीज़ जो है बड़ी चीज़ों में गवर्नमेंट विल डेफिनेटली सपोर्ट। मगर हर एक एरिया में गवर्नमेंट की ओर से टूरिज़्म फेस्टिवल करके लेके जाना ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। वो सोसाइटी अपने आप एक फंडिंग पैटर्न डिवाइस करके इसको एक इकोनॉमिक सस्टेनेबल मॉडल में हम लोगों को चलाना चाहिए। सर, आज एसएसबी ने जैसे फेलिसिटेट कुछ इक्विपमेंट्स दी, आप अप्रिशिएट करते हैं सर? ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में है। एसएसबी जो है हमारा भूटान बॉर्डर में तैनात है। तो अभी वाइब्रेंट विलेज फेज़ 2 में भूटान बॉर्डर को भी हम लोग ने लिया हुआ है। तो आज जितने भी जो सामान यहाँ पे जो गांव में और स्कूल्स के लिए सामान जो भी यहाँ पे दिया है, डेफिनेटली वो गांव वालों को मदद में आएगा। सो इस तरह का जो इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे भी बड़ा इनिशिएटिव तो ये है कि सस्टेनेबल मॉडल में हम लोग जा रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ कुछ गांव में जैसे टूरिज़्म का वहाँ पे बहुत स्कोप होगा, मगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पिछले लगभग 3-4 सालों से चल रहा है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव मॉडल। हमारे नॉर्दर्न बेल्ट खास करके तिब्बत बॉर्डर में बहुत सक्सेसफुली इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेज़ 2 में हमारा भूटान बॉर्डर को भी लिया और ईस्टर्न में म्यांमार बॉर्डर को भी लिया हुआ है। तो इसमें हमारा दोनों एरिया के गाँवों को बहुत फ़ायदा मिलेंगे। सर, तवांग मैराथन अभी सक्सेसफुल रही, अब वालोंग में भी मैराथन होगी अंजो डिस्ट्रिक्ट में। तो अंजो के लिए और वालोंग मैराथन के लिए किस प्रकार तैयारी है? तवांग मैराथन का ये 3rd एडिशन था। तो इस बार मैं तो एब्रॉड में था, मैं पार्टिसिपेट कर नहीं पाया, अदरवाइज़ मैं हमेशा दौड़ता हूँ उस मैराथन में। तो वालोंग का जहाँ तक है कि वालोंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू 1962 वार। और वालोंग सेक्टर में जो अपना ब्रेव इंडियन सोल्जर्स लोग ने जो डिफेंड किया वालोंग को, ये हिस्टोरिक है। अपने देशवासी उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। तो उस वक्त में जो चाइनीज़ एग्रेशन में वालोंग में 1962 में पूरा चाइनीज़ को वहाँ पे डिफेंड करके रखा, उसको चाइनीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया उस वक्त में। सो इसलिए हम लोग ने आर्मी का साथ में मिल के वहाँ पे पिछले कई सालों से वालोंग डे का इवेंट भी हम लोग मना रहा है। तो वहाँ वालोंग में अभी साइकिलिंग एक्सपीडिशन होता है, बाइक एक्सपीडिशन होता है, मैराथन भी होता है और वहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स मीट भी होता है। सो अभी धीरे धीरे वालोंग डे का जो त्यौहार है वो जो एक टूरिज़्म का दिशा अभी ले रहा है। बहुत सारा टूरिस्ट लोग भी वहाँ पे जा रहा है। शायद नवंबर 16 में इसका जो मेन ग्रैंड सेलिब्रेशन नवंबर 16 में होगा। तो इसके लिए भी अभी आर्मी जो मेन हमारा पार्टनर है वो लोग बहुत अच्छा से वहाँ पे तैयारी चल रहा है। और आप सभी का चैनल्स का माध्यम से मैं अपने अरुणाचल के जो व्यूवर्स हैं, आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़रूर वालोंग डे में जाके वहाँ का आप जाके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो डोंग एरिया है, हमारा देश का जो पहला सनराइज़ होता है, उसका आनंद लीजिएगा। और एक नया चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इस बार से हम लोगों का सनराइज़ फेस्टिवल भी हम लोग वहाँ डोंग में हम लोग शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 29 टिल जनवरी 2 ये 5 दिन का इवेंट होगा। तो न्यू ईयर का पहला सनराइज़ देखने आप लोग ज़रूर वहाँ डोंग में आइएगा। सर, लास्टली सर, पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन सामने हैं, आप क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि कैश फॉर वोट अरुणाचल में अभी भी चलता है? ये कैश फॉर वोट का तो मैं डे 1 से ही अगेंस्ट में हूँ। इसके लिए मैंने जितने भी जो अपना CBOs लोगों को भी अपील किया है, रिलीजियस लीडर्स लोगों को भी अपील किया हुआ है। तो वो लोग सब लोग बोलते रहे हैं कि मतलब वो लोग भी काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस तो वो लोग दे रहे हैं, मगर अल्टीमेटली पब्लिक को इसके बारे में सेंसिटाइज होना बहुत ही आवश्यक है। जो कैश फॉर वोट जो बोलते हैं तो सभी ट्राइब्स में नहीं होता है। ये सभी ट्राइब्स में जैसे हमारा मोनपा एरिया में नहीं होता है ये कैश लेके वोट देना, ये कल्चर नहीं है हम लोगों का। और ना ही ईस्टर्न साइड में है इस प्रकार का कल्चर। तो कुछ कुछ समाज में है। तो आई थिंक वो समाज को एजुकेटेड लोग, CBOs लोग और भी इसमें मंथन करके बातचीत करके कुछ करना होगा। नहीं तो इस प्रकार से अभी कैश फॉर वोट करके चलते रहेंगे तो इट विल गो इन अ मेस। तो हमारा वही रिक्वेस्ट है सभी से कि
चाहे वो पंचायत इलेक्शन अभी आने वाला है, पंचायत इलेक्शन में भी पैसा लेके सौदाबाजी करके वोट देके इस प्रकार का प्रैक्टिस होपफुली नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता भी है तो उसको हम लोग कंडेम करना चाहिए। सर, जापान की कोई टेक्नोलॉजी को आप अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई हाँ यूज़ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस बार मेरा पहला ऑफिशियल विजिट रहा जापान में। वैसे जापान में मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो पहला ऑफिशियल विजिट था मेरा। और वहाँ जाके हमारा जो डाइट मेंबर्स, वहाँ के डाइट मेंबर्स मतलब जापान के एमपीज़, बहुत सारा एमपीज़ के साथ में हमारा मीटिंग हुआ। वहाँ के जो पॉलिसी जो एग्जीक्यूशन करते हैं उनके साथ में भी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ में भी मीटिंग हुआ। तो जापान को लेके अरुणाचल और जापान के बीच में बहुत चीज़ हम लोग कर सकता है। अभी मैं अपने ओर से एक तो रोड मैप बना रहा हूँ। वो रोड मैप कंप्लीट होने का बाद में हमने प्लान किया कि हमारा जितने भी जो लेजिस्लेटर्स और हमारा CBOs, उन लोगों को बुला के, इंक्लूडिंग मीडिया को भी, सभी को बुला के इसके बारे में हम थोड़ा अवेयरनेस करेंगे। और आने वाला दिनों में हमारा इंडियन एम्बेसी के थ्रू से जापान के हमारे जो जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन सभी को यहाँ इनवाइट किया हुआ है। वहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्री के लीडर्स को इनवाइट किया हुआ है। वहाँ के जो ये एकेडमिया है, एकेडमिक्स में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। तो इसका रोड मैप जो है अभी बन के तैयार होने वाला है। जैसे बन के तैयार हो जाएगा, मैं MLAs, CBOs और मीडियाज़ को भी बुला के एक साथ मैं जाके प्रेजेंटेशन में वहाँ पे दूंगा। सर, लास्टली इंडिजिनस सोसाइटी ने सबने पंचायत इलेक्शन को बॉयकॉट करने की मांग की। अगर आप AFRA को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, 6 मंथ हो चुके हैं सर, रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुए। इसमें देखिए, ऑलरेडी जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हमारे ओर से पूरा क्लियर है। हमने कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसके लिए सरकार ने थोड़ा सा टाइम लेके सबका सुझाव लिया। सभी सेक्शंस का सुझाव आया, इंडिजिनियस का भी सुझाव आया, क्रिश्चियंस का भी सुझाव आया, बाकी लोगों का भी, इंडिविजुअली लोगों का भी सुझाव आया। तो सुझाव को देखते हुए अभी कमेटी का गठन करना है। तो कमेटी का भी गठन करना है, तो उसमें इंडिजिनियस का भी सुझाव आया, क्रिश्चियन का भी सुझाव आया। तो हम लोग अभी सरकार की ओर से हम लोग ने ये तय किया है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है, तो इसको चेयरमैन को हम लोग, एक रिटायर्ड जज को हम लोग चेयरमैन बनाएंगे, उसको नॉमिनेट करके इसके बाद मेंबरशिप बना के जल्द से जल्द इसमें काम शुरुआत किया जाएगा। थैंक यू। पॉलिटिकल रैली लगी, आप तो PPA के मेंबर हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। यहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने आज यहाँ पे आया, तो यहाँ का डेवलपमेंट को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आउटपुट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो इन दोनों को कंट्रीब्यूशन से ये दिरांग काफ़ी आगे गया है। तो मैं दोनों को लेके मेरा दिरांग का जो पब्लिक को एक ही छत के नीचे में सारा ऑफिस मिल जाएगा। तो मैं दिरांग का पब्लिक को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हुए, मेरा हमको जो भी फंड मिला पिछले बार रिलीफ से, मैंने पूरा यहीं डाला, और इस बार भी जो मिलेगा पूरा यहाँ बन जाएगा। उसका चिंता करने की जरूरत नहीं। जब हम इतना बड़ा जो एसेट खड़ा किया तो उसका रखवाली भी मतलब मैं हूँगा, चिंता करने का। 16 साल हो गए दिरांग को आपके नेतृत्व में, और भी चाहते हैं लोग आप इसी तरह प्यार मिलेगा आपको? हाँ, वो मेरा काम करने के ऊपर में, मेरा काम अच्छा लगेगा तो मुझे बार बार मौका मिलेगा। अगर मेरा काम ठीक नहीं हो तो मुझे उतार देगा, क्योंकि सर एयरपोर्ट में यहाँ पे कह रहे कि नहीं बनेगा। हाँ, एयरपोर्ट में कुछ इश्यूज़ आ गया, टेक्निकल इश्यूज़ है, वो तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। DGCA का कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम लोग मिटअप नहीं कर पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड सर आएगी अभी? हाँ, परमानेंट स्टेशन बन जाएगा? यस, वो सैंक्शन हो गया, टेंडर भी हो गया वो।